Hello students, myself KK Mehta, civil engineer DVC, done my master degree from IIT Durgapur, and I have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of power plant. Today in this lecture मैं डिस्कस करूँगा कि एक आरसीसी फुटिंग की डिज़ाइन कैसे की जाती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि आरसीसी फुटिंग की डिज़ाइन करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उनके पहले भी जितने सारे लेक्चर्स हुए हैं हम लोगों ने देखा है कि फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए आईएस कोड ने क्या गाइडलाइन दे रखी है, फुटिंग किसे कहते हैं, फाउंडेशन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया मुझे फॉलो करनी है, कौन कौन से मेरे आईएस कोड के गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना है। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देख चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर कहीं कुछ फंस रहा होगा, कुछ समझ में ना आ रहा होगा, इसलिए मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। उसे अगर कुछ लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे लगता है आज सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो माय क्वेश्चन इज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर एन एक्सेली लोडेड कॉलम ऑफ साइज 300 mm into 600 mm load on a column is 1150 kN. Say bearing capacity of the soil is 200 kN per meter square. Use M20 concrete and Fe 415 steel. This is my question. So अब क्या है कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या मुझे गिवन डेटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा, व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन डेटा के बाद क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन जो हम लोगों की 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप हम लोगों ने पढ़ रखी है, उनको फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन, स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, गिवन इज योर साइज ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 300 into 600. This is the size of the column. Load on column 1150 kilonewton. Safe bearing capacity Q equals to 200 kilonewton per meter square. Grade of concrete, what is grade of concrete? Grade of concrete equals to M20. Grade of steel equals to 400 Fe 415. You can say this is the grade of concrete. ये हमें जो मैं बता चुका हूँ कि 5 डेटा दी होती है। उसके बाद आपको डिज़ाइन करने के लिए मैं बता चुका हूँ पहले कि आपको बस एरिया ऑफ द फुटिंग फाइंड करनी है, थिकनेस ऑफ द फुटिंग फाइंड करनी है और रिइंफोर्समेंट की डिटेल निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप दैट यू नो, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन फाइंड एरिया ऑफ फुटिंग एंड factored soil pressure. So what is my load, how can we find total load equals to load on column plus weight of footing. This is my weight of footing. So load on column is 1150 kilonewton is given, plus weight of footing is 10% of 1150. So this is 1150 plus 115. This is equals to 1265 kilonewton. This is my total load. So area of footing equals to total load divided by soil bearing capacity. Total load is 1265 kilonewton. Soil bearing capacity is, what is my soil bearing capacity? It is given in the question, it is 200 kilonewton per meter square. So what will be the area? 6.325. Your area is 6.325 meter square.
So area of footing, we are designing a rectangular footing, so L into B equals to 6.325. Let us assume L equals to 2B. So L equals to, you can write 2B into B equals to 6.325. B equals to 1.77 meter is approximately, you can say, you can take it 1.8 meter. So what will be your L? L equals to 2 into 1.8 equals to 3.6 meter. So actual area provided, equals to 1.8 into 3.6. This is the actual area of the footing. So I think you know the steps. You have to find the total load. Assume 10% of the column load. So when you add this, you will get 1265 kilonewton. And just you will divide by the soil bearing capacity. You will get the area is 6.325 meter square. L into B, just area 6.325. Let us assume L equals to 2B. This is, so 2B into B, you will get, just you will solve it, B equals to 1.77 meter. And just I have already told you कि आपको जो इस फ्रैक्शन में आ रही, इसको आपको राउंड ऑफ करनी पड़ेगी. तो इसको 1.77 को हम लोगों ने क्या किया, 1.8 मीटर ले लिया. तो आपकी जो लेंथ है वो डबल है. सो योर लेंथ बिकम 3.6 मीटर. So your first job of finding the dimension you got, what is the dimension you got is, so just what you got is that you got the dimension of the footing. This is the dimension. So you got this one, length is your 3.6 meter and this is your 1.8 meter. This you found. Now the second job is to find the factored soil pressure. So soil pressure, just write down soil pressure due to column load only equals to 1150 divided by your 1.8 into 3.6. This is equals to 1.77.46 kilonewton per meter square. This is your Q, you can see. And what is my factored soil pressure? Factored soil pressure equals to 1.5 Q. This is Q naught. This is equals to 1.5 into 177.46. This is equals to, you can say, 266.20 kilonewton per meter square. This is my factored soil pressure. Just multiply with 1.5. What you got from the column load only. This is the pressure due to column load only, 177.46. And just multiply by 1.5. That we have seen that in limit state method of design you have to multiply with 1.5. So आपको multiply करनी है. आपको मिल गया क्या? 266.20. So my first step is over. You got the dimension of the rectangular footing, and second you got the factored soil pressure Q naught. This is my Q naught, 266.20. So come to the second step. What is my second step? Just erase it. Step 2. What is my step 2? Calculation of depth by bending. और हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ करेंगे बाय बेंडिंग से. So what is my bending moment coming that we have seen in MYY direction? Bending moment in YY direction equals to Q naught into B L minus A square divided by 8. This is equals to 266.20
into B is 1.8, L is 3.6 minus what is the A column size here, it is here A is 600 millimeter, so 0.6 square divided by 8. So what is the value you will get when you will calculate it MYY? You will get M 539.07 kilonewton meter. This is the moment you will get in the YY direction. So what you will get in XX direction? MXX equals to Q naught into L B minus B. This is the formula that you know, मुझे पता है आपको. इसको just your 266.20 into L is your 3.6, B is your 1.8, your B is your this one 300 millimeter, so 0.3 in meter square divided by 8. So what you will get? 200. You will get 269.53 kilonewton meter. You will get two bending moment, one in the YY direction. आपको मिलेगा YY direction में एक bending moment जो कि आपको मैक्सिमम होगी, XX जो कि आपको थोड़े उससे कम होगी. अब मैं निकालूंगा क्या, हम लोगों के स्टेप में देखे थे कि what is the moment of resistance of the slab for the balance section for M20 concrete. So what is MOR, moment of resistance, equals to 0.138 FCK BD square. So this is equals to, you can say this is my equation, you can say just 0.138. FCK is 20 because my concrete grade is 20 M20, so this will be FCK is 20. What is B here? B is your 1800 and D square. So MYY equals to MOR 539.07 into 10 to the power 6, convert into Newton per millimeter square, 0.138 into 20 into 1800 into D square. You will solve it, you will get D equals to, what is the value you will get? D equals to 329.40 millimeter. So this is equals to 330 millimeter. So this is the depth from the bending moment criteria. Calculation of depth by bending moment. हम लोगों ने देख चुका है स्टेप 2 में कि वाई वाई और एक्स डायरेक्शन में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है. जो मैक्सिमम है एम वाई वाई में, उससे आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो बैलेंस सेक्शन की है ये 0.138 FC के BD स्क्वायर, दिस इज 0.138 FC के BD स्क्वायर फॉर M20 कंक्रीट, यू कैन से राइट फॉर M20 बैलेंस सेक्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला दी हुई एक्सप्रेशन, आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, दिस MYY equals to MOR, you will get a depth that is 330 millimeter. This is the depth from the bending moment criteria. अब मुझे डेप्थ निकालनी है वन वे शेयर की क्राइटेरिया से. Now what is my step 3? Not on the step 3. This is my step 2. So come to the step 3. चलिए अब निकालते हैं हम लोग वन वे शेयर क्राइटेरिया. What is this? Is my step 3. So calculation of depth by one way shear. Calculation of depth by one way shear. One way shear से कितनी आएगी? तो shear force on critical section. So write down shear force on critical section equals to Q naught. You know the formula. What is the formula here? L minus A by 2 minus D into B. This is the formula for the shear force on critical section. ये सेक्शन पे हमारी shear force कितनी आएगी? तो just write down the value. Q naught is 266.20. I have what is L? 3.6 minus 0.6 by 2 minus D is
What is D? D I have to find. So D, and what is B? 1.8 meter. So by solving this, what you will get? What you will get? You will get 479.178, 479.178, 1.5 minus D. This is my expression 1. So what is the permissible shear force कितना हो जाएगा हमारे? This is equals to tau c into BD. You know what is tau c here? Let us assume 0.20% of still. So tau c equals to 0.32 Newton per millimeter square. तो हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू tau c is 0.32 Newton per millimeter square. So convert it into kilonewton meter square. So multiply with 10 to the power 3. What is my B here? That is again 1.8, and this is my D. So what you will get? What is the value here? 576D. 576D. This is my equation 2. Solving 1 and 2. D equals to, what is the value of D you will get? You will get D equals to 0.681 meter is equals to 681 millimeter. आई थिंक आपको तो जो स्टेप्स है हमारी तीसरी स्टेप्स वो आपको पता है कि जब डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे वन वे शेयर से तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा Q नॉट. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर. हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है. आप निकालोगे यू विल गेट वन इक्वेशन. डी आपका अननोन है बिकॉज आप डी निकाल रहे हो. यहाँ भी आपका डी अननोन है. इन दोनों को इक्वेट करोगे आपकी डी क्या हो जाएगी? 681 मिलीमीटर. इसके पहले जो डी निकली थी बेंडिंग मोमेंट से कितनी थी? 330 मिलीमीटर. सो पहला केस से 330 मिलीमीटर, सेकेंड केस से 681 मिलीमीटर. अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ बाय टू वे शेयर और पंचिंग शेयर. राइट ऑन द थर्ड स्टेप. Write down the fourth one because we have completed the third one. आइए हम लोग फोर्थ स्टेप से देखते हैं कि क्या डी का वैल्यू निकलता है. फिर मुझे क्या निकालना है? डेप्थ ही निकालना है. कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ बाय टू वे शेयर. दिस इज माय फोर्थ स्टेप. सो दिस इज माय फोर्थ स्टेप एंड दिस इज टू वे शेयर और यू कैन से पंचिंग शेयर. अब मुझे क्या देखना है? क्या फॉर्मूला है मेरे पास? शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल सेक्शन. शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल सेक्शन कितनी है? दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन? Q नॉट L इंटू बी माइनस A प्लस डी B प्लस D. This is the area multiplied with Q naught. This is equals to, what is my Q naught? 266.20. 266.20 is the Q naught. What is L? My 3.6. 1.8 minus, what is A plus D? Can you tell me? A is 0.6 plus D is unknown. Again we have to find the D. B is 0.3 plus D is this one. What you will get? An expression like 1677.12 minus 239.589 D square. Here is the D minus 266.21 D square. This is one quadratic equation you will get. This is my equation 1. So shear force, permissible shear stress कितनी आएगी हमारी? Permissible shear force क्या है हमारा? This is equals to, we know that Ks tau c and area
that is perimeter into depth. Perimeter into depth. And if it is a, so you have to multiply it with Q naught. So this is Q naught Ks. Oh, this is not Q naught, sorry. This is Ks. Ks that we know 0.5 plus beta, and tau c is 0.25 root under FCK. And what is perimeter? Twice A plus B plus B plus D, A plus D, sorry, this is my A plus D plus B plus D. This is into depth. When you will put the value, like your beta is again 0.5, that we know, that is beta equals to 0.5, this is equals to 0.5 plus 0.5, 1, it becomes 0.25. FCK is, what is FCK? That is 20 here. So this is my 2. You can say, what is A? 0.6 plus D plus 0.3 plus D into, what is D here? D unknown. So you have to multiply this by 3. This is equals to, you can say 0.25. This becomes 1 root under 20 into 10 to the power 3, because you have to convert it into, this is in Newton per meter square, so you have to convert it into kilonewton meter square, because I have used here the meter, that's why. So this is my 2.9 plus, you can say 2D into D. You will get an expression like this. What you will get? You will get 2012.46 D plus 4472.12 D square. This is my equation 2. So equating 1 and 2, what you will get? आपको समझ में आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल आ रहा है. हमारा जो shear force on critical section निकालने की ये फॉर्मूला है, आप वैल्यू पुट कर दो. परमिसिबल CS निकालने की ये फॉर्मूला है, वैल्यू आपने रख दिया. यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस. आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी. दोनों को इक्वेट करो. इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्या इक्वेट करने के बाद मिलेगा हमें? सो जस्ट राइट डाउन. इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा? डी स्क्वायर प्लस 0.475 b minus 0.354 equals to 0 and d equals to 403 millimeter. So अब समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? This is my step 4. हम लोगों ने क्या किया? बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से हमें 330 मिलीमीटर का डेप्थ निकल गया, इफेक्टिव डेप्थ. उसके बाद कैलकुलेशन बाय वन वे शेयर से दैट वी गॉट 681 मिलीमीटर हम लोगों को मिल गया. अब आती है बात स्टेप 4. हम लोगों ने कैलकुलेट करके डेप्थ निकाल दिया टू वे शेयर से 403 मिलीमीटर. तो चूज द, राइट डाउन, चूज द इफेक्टिव डेप्थ, चूज और adopt 681 millimeter as effective depth of footing. Effective depth of footing. D equals to 681 millimeter. So find overall D. आखिर overall D कितना होगा? So D equals to क्या हो जाएगा? 681 plus clear cover 50 millimeter plus 8 millimeter. Why 8? Because just assume 16 phi bar will be used for reinforcement. तो यहाँ देखोगे what will be D here? So 681 50 plus 8 9 739.
इज इक्वल्स टू 750 मिलीमीटर। सो एक्चुअल डी क्या हो जाएगा आपका 750 minus 50 minus 8. So what will be the actual D? Just 750 minus 58. This will get 2 here. 49 692 millimeter. So your final, because round off करनी है मुझे, आपको पता है ओवरऑल डेप्थ हमें निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो निकला हुआ है इफेक्टिव डेप्थ मिला है 681 जो कि सबसे हाईएस्ट है, हमें यहाँ रख देनी है। उसके बाद क्लियर कवर मुझे 50 अडॉप्ट करनी है फुटिंग में, मुझे ये भी पता है। 8 व्हाट इज 8? 8 इज द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ 16, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ 16। सपोज हमने क्या किया कि फुटिंग के लिए हम लोग 16 का यूज करेंगे, तो हाफ मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। दैट्स बिकम योर 16/2, दैट इज योर 8। सो योर फाइनल इफेक्टिव डेप्थ, sorry, final overall depth will be 739 millimeter. So you get it round off to 750 millimeter. So your total D will be 750 millimeter. Then your actual D, actual effective depth that you will provide in the site is your 692 millimeter. This is the 692. So we have decided the dimension of the footing. From the first step आपको area मिल गया है, और स्टेप 2, 3, 4 से आपको इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ भी मिल गया है। नाउ योर हाफ द जॉब इज डन, आपने आधा काम कर लिया है। अब मुझे क्या करनी है, जब डायमेंशन मिल जाए लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस, यू हैव टू गो फॉर रेनफोर्समेंट डिजाइन कि क्या रेनफोर्समेंट लगेगी लॉन्गर डायरेक्शन में, क्या रेनफोर्समेंट लगेगी शॉर्टर डायरेक्शन में। सो नाउ स्टेप 5 क्या होगा, what is my step 5? Now write on the step 5. Step 5. Calculation of reinforcement. Calculation of reinforcement in longer and shorter direction longer और shorter direction में मुझे क्या reinforcement मिलेगा। So for longer direction, just first of all we'll calculate longer direction। पहले हम लोग longer direction में देख लेते हैं longer direction में क्या होगा। तो लॉन्गर डायरेक्शन में क्या होगा, लॉन्गर डायरेक्शन में हमारी मोमेंट कितनी है, my इक्वल्स टू, वी कैन यूज दिस फार्मूला 0.87 Fy AST into D 1 minus AST by BD Fy FCK। आपको लॉन्गर डायरेक्शन में जो मोमेंट आई है My जो मैक्सिमम है उसे इक्वेट करना है इस बैलेंस सेक्शन जो हमें रिइंफोर्समेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है स्लैब के लिए, उसके साथ। अब आप पुट द वैल्यू 539 इज माय, व्हाट इज द वैल्यू 539.07, My इज 539.07। हम लोगों ने देखा है स्टेप 2 में into 10 to the power 6 because this is in kilonewton meter, so convert it into न्यूटन मिलीमीटर। आपको इसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है 0.87, व्हाट इज Fy 415, ग्रेड ऑफ स्टील आपकी दी हुई है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 होगी। AST आपको यहाँ से निकालना है। D, you have decided the D, so what is the D here that you are going to use 692, this is the final D। 1 minus AST आपको यहाँ से निकालनी है, B पता है आपको 1800, D क्या है, D is 692, Fy is 415, FCK is 20। आप इसको सॉल्व करोगे you will get a quadratic equation। आपको क्या quadratic equation मिलेगा यहाँ पर, what you will get, AST square, you will get AST square minus
40.96 AST plus 1299 78313 equals to 0, and AST equals to 2225 millimeter square. So how can you find the AST? आपको मिल गया, आप एरिया ऑफ स्टील लॉन्गर डायरेक्शन में आपको ये मिल गया, एरिया ऑफ स्टील लॉन्गर डायरेक्शन। लेकिन जब मिल गया आपको मैं बता चुका एक चेक लगानी है। क्या चेक लगानी है? कि मिनिमम इन्फोर्समेंट आपको चेक कर लेना है कि 0.12% है या नहीं है। सो चेक फॉर मिनिमम इन्फोर्समेंट। सो व्हाट यू राइट हियर? चेक फॉर मिनिमम इन्फोर्समेंट। क्या करोगे मिनिमम इन्फोर्समेंट के लिए? चेक करने के लिए AST बाई BD करोगे, AST बाई BD करोगे। दिस इज इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज AST यू आर प्रोवाइडिंग? कितना डाल रहे हो आप? 2225। B कितनी है आपके पास? 1800। और D कितना आपके पास? 750। टोटल ओवरऑल डेप्थ कितना है? 750। आप इसको करोगे यू विल गेट 0.164%। हेंस ओके, मुझे पता चल गया कि 0.12% से एवव है, बिकॉज दिस इज SY/SD बार। तो मैं जब कैलकुलेट करके देख लिया 0.164% हमने इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है? माई इन्फोर्समेंट इज ओके फ्रॉम द मिनिमम इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये चीज़ पता चल गया। अब चलो, अब क्या करनी है? ये तो अमाउंट मिल गया कि 2225। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे लॉन्गर डायरेक्शन में? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो देख लो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देखो, ये हमारी लॉन्गर डायरेक्शन है। अब क्या करनी है? दिस इज माई 300, दिस इज माई 1800 मिलीमीटर में अगर देखें तो। अब लॉन्गर डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि आपको ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल सपोज एज्यूम 16 डाया बार इज यूज्ड। आपको एज्यूम करना है कि 16 का मैं लगा रहा हूं। तो एरिया ऑफ 1 बार क्या होगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 201 मिलीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बार इक्वल्स टू टोटल एरिया 2225 डिवाइडेड बाई 201, दिस इज इक्वल्स टू 11.05, दिस इज इक्वल्स टू 11 नंबर्स। आप 11 नंबर्स डालोगे। आप बताइए स्पेसिंग कितनी होगी? व्हाट विल माय स्पेसिंग? सो अवेलेबल you can say width is 1800 divided by your 11 numbers, this is equals to 100, you can say 63.63 millimeter center to center. So provide 16 dia bar at the rate 160 millimeter center to center. इसका मतलब क्या है कि इन सब का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, ये सब ये सब ये सब ये सब, ये क्या हो जाएगा? जो बार्स होंगे 16.5 एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आपकी टोटल एरिया ये है। आपने एज्यूम कर लिया कि 16 की बार लगानी है। उसका एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 201। आप डिवाइड करके देखोगे तो 11 नंबर का बार मिलेगा कि मुझे 11 नंबर्स का बार इस डायरेक्शन में मुझे प्रोवाइड करनी है। 11 नंबर जब निकल गया तो मुझे स्पेसिंग निकाल सकते हैं। योर अवेलेबल विड्थ इज, व्हाट इज अवेलेबल विड्थ? 1800।
and so divide by 11 you will get 163.63 and just round off कर लो कि इसको 160 मिलीमीटर पे हमें डालना है, बिकॉज मेजरमेंट में जब साइड प्रैक्टिकली देखोगे तो इट्स इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर 163.63, सो आपको उससे थोड़ा कम लेना है, बिकॉज आप कम लोगे तो यू विल बी इन सेफर जोन, आप सेफ रहोगे। सो आपका एक कंक्लूजन निकल गया कि लॉन्गर डायरेक्शन में 16 का बार 160 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डालना है। तो दिस इज अबाउट योर रिइंफोर्समेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि रिइंफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन में कितना होगा। सो राइट डाउन, इसी ये में हमें करना है कि रिइंफोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन क्या होगी। लॉन्गर में तो हम लोगों ने देख लिया, देखा हाँ ठीक है 16 का लगाना है 160 मिलीमीटर स्पेसिंग का, ये हम लोगों ने काम कर दिया है। नाउ अब मुझे देखना है कि शॉर्टर डायरेक्शन में कितना रिइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। सो शॉर्टर डायरेक्शन में क्या होगा, शॉर्टर डायरेक्शन के लिए हमारा मोमेंट कितना है mxx इक्वल्स टू सेम फार्मूला 0.87 fy ast इंटू d 1 minus ast by bd fy by fck. This is my basic formula. What is my, you can say mxx कितना है हमारे पास, what is my mxx? mxx is 269.53 into 10 to the power 6. This is my 269, this is my 269.53. 0.87 fy is 415, ast आपको निकालना है शॉर्टर डायरेक्शन में, d आपके पास है 692, 1 माइनस ast आपको निकालनी है, b कितना है 1800, d कितना है आपके पास 692, fy पता है आपके पास 415 है, fck 20 है। इस फार्मूला को यूज करते हुए अगेन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आप, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, what is the quadratic equation? Your quadratic equation will be ast square minus 60030.41 ast plus 64760000 equals to 0. ast equals to 1098 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इतना मिलीमीटर स्क्वायर का रिइंफोर्समेंट आ गया शॉर्टर डायरेक्शन में। अब मुझे क्या करना है, आपको चेक करनी है कि क्या ये 0.12% है शॉर्टर डायरेक्शन में। देखो, चेक फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कितना होना चाहिए 0.12% of BD, so 0.12 into what is B my here B is 3600 into 750, so this will be 3240, this will be 3240 मिलीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो कि मिनिमम मुझे प्रोवाइड कितनी करनी है 3240, बट कैलकुलेशन से आपका आ रहा है कि 1098। आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, जो कैलकुलेशन से ला रहे हो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये मिनिमम इन्फोर्समेंट की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। सो एक्चुअली इन द फील्ड आप प्रोवाइड क्या करोगे, इस इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करोगे, आप प्रोवाइड करोगे 3240 मिलीमीटर स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हो आप, AST टोटल क्या हो जाएगा, AST टोटल जो है एरिया ऑफ स्टील टोटल इन यू कैन से इन शॉर्ट डायरेक्शन पे आपका 3240 मिलीमीटर स्क्वायर प्रोवाइड करनी है। अब बताओ कि एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड का कंसेप्ट है, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा सेंट्रल बैंड एंड बैंड, ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप।
हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, AST मुझे शॉर्ट निकल गया कि 3240 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे पता करना है कि सेंट्रल बैंड में कितना रिइंफोर्समेंट आएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड में कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 1, पता है हम लोगों को, एंड दिस इज 3240। अब इसको कैलकुलेट करोगे, व्हाट यू विल गेट, 2160, दिस यू विल गेट 2160 मिलीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन एंड बैंड्स में कितना होगा, इज इक्वल्स टू, एंड बैंड्स में हो जाएगा आपको 3240 माइनस 2160, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1080 मिलीमीटर स्क्वायर। सो इन वन बैंड कितना होगा, एरिया ऑफ स्टिल इन वन बैंड, ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 540 मिलीमीटर स्क्वायर। आपको ये भी मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन यूज फॉर सेंट्रल बैंड, यूज 16/5 बार। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार्स इक्वल्स टू अगेन 2160 डिवाइड बाई 201, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 10.74 इक्वल्स टू 11 नंबर्स। 11 नंबर्स आपको डालना है सेंट्रल बैंड में। अब मुझे करना है एंड बैंड्स में। स्पेसिंग क्या हो जाएगी इसकी, स्पेसिंग इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाई 11 नंबर्स, अगेन 163.33 मिलीमीटर सेंटर। सो क्या करेंगे, प्रोवाइड 16/5 बार एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर इन सेंट्रल बैंड में आपको ऐसा करके रखना है। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, योर बीटा इज हियर, बीटा इज 2 हियर, यू नो दैट बीटा इज 2। सो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, सेंट्रल बैंड में आप कितना इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो, जो मिल गया कि टोटल इन्फोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है 3240, सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड करना है 2160, और एक बार का अगर एरिया पता है मुझे 201 है क्योंकि 16 का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखोगे कि 11 नंबर का बार मुझे लगेगा। स्पेसिंग निकालोगे तो 160 मिलीमीटर सेंटर, जिस तरह हम लोगों ने पिछले बार किया था, पिछले जो स्टेप था हमारा लॉन्गर के लिए, उसी तरह से होगा। नाउ अगेन मैं जो एंड बैंड्स हैं उसमें मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना इन्फोर्समेंट लेगा, कितना स्पेसिंग होगा। सो एंड बैंड्स में क्या होगा हमारा, एंड बैंड्स में क्या होगा 540, मेरे को एक एंड्स में 540 लगाना है। सो नंबर ऑफ बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 540 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 201, दिस इक्वल्स टू 2.74, दिस इज इक्वल्स टू 3 नंबर्स आपको बार लगानी है। अब स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग इक्वल्स टू, देखो स्पेसिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 900 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 300 मिलीमीटर सेंटर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 900 कहाँ से आया। सो हम लोग पहले क्या करेंगे,
ये जो है हमारी लॉन्गर डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, मुझे लॉन्गर डायरेक्शन में, शॉर्टर डायरेक्शन में ये है हमारा कितना और ये कितना है, दिस इज माई 1800 और एंड्स हैं आपके 900, दिस इज 900। तो ये 900 को इस एंड में, और ये एंड बैंड्स हैं, ये सेंट्रल बैंड्स हैं, तो इस एंड बैंड में हमारा जो विड्थ अवेलेबल रहेगा वो 900, और आपकी देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बाल आएगा 3, तो आपका स्पेसिंग क्या हो जाएगा 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब क्या होगा, प्रोवाइड 16.5 एट द रेट 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर इन एंड बैंड्स, एंड बैंड्स। इस एंड बैंड में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, ये आपकी इन्फोर्समेंट हो जाएगी एंड बैंड्स में। और अगर आप इसको लिख दो, ऐसा करके लिख सकते हो, ऐसा करके लिख सकते हो 16.5 एट द रेट 300 मिलीमीटर सेंटर सेंटर शॉर्ट डायरेक्शन में। अब क्या आती है बात, लॉन्गर डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें, सो यू कैन से दिस इज, you just erase this one because this is just like a reinforcement here, so you cannot provide like that. So this is the reinforcement in the central band. This spacing will be less, spacing will be less because आपको पता है कि हमारी स्पेसिंग कितनी है, हमारी स्पेसिंग कितनी है यहाँ पर, ये सारे जितने हो जाएंगे ये कहीं ना कहीं 16.5 एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो मुझे पता चल गया शॉर्टर डायरेक्शन में जब हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्टर डायरेक्शन में ये हमारा सेंट्रल बैंड्स है, उसमें मुझे 16 का बार 160 मिलीमीटर सेंटर सेंटर पर डालना पड़ेगा, और एंड बैंड्स में 16 का ही लगेगा, लेकिन स्पेसिंग क्या हो जाएगा 300 मिलीमीटर सेंटर सेंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिइंफोर्समेंट। अब बात आती है लास्ट स्टेप, चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर द development length. So now the last step is check for the development length. Check for the development length. क्या फॉर्मूला आएंगे हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, now my final step is step 6. What is my step 6? Check for development length. Step 6, check for development length. अब देखनी है मुझे क्या है, we know LD equals to 0.87 FY5 divided by 4 tau BD. This is equal to 0.87, Fy is 415, my bar is 16, we are using 16 millimeter bar. 4 tau BD is 1.92 4m, tau BD equals to 1.92 Newton per meter square. When you will calculate this, your LD will be equals to 752.18 मिलीमीटर। अब मुझे देखना है अवेलेबल लेंथ कितना होगा, अवेलेबल लेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन क्या होगा, इज इक्वल्स टू शॉर्टर डायरेक्शन में मैं अगर कर दूं तो क्या होगा, ये हमारा 1800 माइनस 300 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 750 मिलीमीटर। ये कैसे आ रहा है हमारा, हम लोगों ने क्या किया है, ऐसा निकाला है,
दिस इज माई 1800 दैट यू नो दैट द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ये हमारा कितना है, ये कितना है हमारे पास, दिस इज माई 300। सो आपको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये से ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा 1800 का हाफ कर दो और माइनस हाफ ऑफ दिस 300 कर दोगे, आपको मिल जाएगा 750। मतलब कि 750 का अवेलेबल लेंथ है, लेकिन आपके पास कितना प्रोवाइड करना है, LD is greater than, your LD is greater than 750 millimeter, hence provide anchorage length, provide anchorage length, anchorage length, आपको 85 का एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको रिइंफोर्समेंट ऐसा तो डालोगे ही, सॉरी दिस इज बिट अबव, आई कैन नॉट पुट इट, आप ऐसा करके रिइंफोर्समेंट डालोगे, आपको यहाँ एक एंकरेज लगाना पड़ेगा। दिस इज द एंकरेज लेंथ, दिस इज द एंकरेज। तो क्या एंकरेज लगाएंगे, हम लोग देख चुके हैं पहले भी। सो प्रोवाइड एंकरेज लेंथ, सो कितनी है हमारी एंकरेज लेंथ, so provide anchorage length, so provide anchorage length, क्या एंकरेज लेंथ होगा हमारा, देखो आपकी जो एंकरेज लेंथ हो जाएगी, वी नो एंकरेज लेंथ इक्वल्स टू 85, सो अवेलेबल लेंथ इक्वल टू 750 मिलीमीटर। सो टोटल लेंथ क्या मिल जाएगा, कितना प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, टोटल लेंथ इक्वल टू 750 प्लस 85, this is equal to 750 plus 8 into 16, this is, you will calculate this, you will get a length of how much, 878 millimeter, 878 millimeter, therefore 878 millimeter is greater than 752.18 millimeter, hence ओके। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जब डेवलपमेंट लेंथ लगा रहे थे उस समय हमारे पास जो अवेलेबल लेंथ था वो कम पड़ जा रहा था, तो जब अवेलेबल लेंथ कम हो जाए उस केस में हम लोगों ने क्या देखा है कि एंकरेज लेंथ लगानी है। तो एक जस्ट एंकरेज लेंथ हम लोग बेंड प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा एंड्स होता है, मैं बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, उस एंड्स कितना होता है 85, तो अब हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 750 प्लस 85, इट मीन्स दैट कि 878 मिलीमीटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फुटिंग के लिए। और रिक्वायरमेंट कितना थी हमारी रिक्वायरमेंट थी 752.18 मिलीमीटर। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारी डिज़ाइन ओके है। नाउ अब हम लोग डिटेलिंग करेंगे थोड़ा कि रिइंफोर्समेंट कैसे कैसे डालना है, कैसे क्रॉस सेक्शन हमें देखना है, क्या देखना है। इसी में जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं लास्ट में हमें दिखाना पड़ता है कि कौन सा रिइंफोर्समेंट कहाँ है, फुटिंग में कौन सा रिइंफोर्समेंट एक क्रॉस सेक्शन कट करके मुझे दिखाना पड़ता है। सो हाउ कैन वी शो दैट, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कर देते हैं। जस्ट गिव हेडिंग इन दिस स्टेप, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि दिस इज द, यू कैन से हियर, यू जस्ट ड्रॉ हियर, ये हमारी फुटी की क्रॉस सेक्शन है, मुझे पता है।
और जब हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह की हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगी। दिस इज द 14 क्रॉस सेक्शन। अब क्या देखना है हमें कि सबसे पहले इसको मैं अभी यहाँ से इरेज कर देता हूँ, बिकॉज रिइंफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे जब रिइंफोर्समेंट तो शॉर्टर डायरेक्शन में। तो शॉर्टर डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करना है मुझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, दिस इज माई सेंट्रल बैंड। सो दिस इज द स्पेसिंग इन द सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड, दिस इज सेंट्रल बैंड। शॉर्टर डायरेक्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने कितना दे रखी थी सेंट्रल बैंड में, 16.5। जितने सारे इन्फोर्समेंट है, दिस इन्फोर्समेंट, ये अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 16.5 एट द रेट ऑफ 160 मिलीमीटर सेंटर सेंटर, एक इन्फोर्समेंट। दूसरा क्या है हमारे पास, दिस इज इन द एंड रिइंफोर्समेंट, 1 2 3 1 2 3। ये हमारा कहाँ है, दिस इज इन द, you can write here end bands 16.5 at the rate 300 millimeter center to center. This is for the end bands. end bands के लिए हमें लगा दिया reinforcement, सेंट्रल बैंड के लिए लगा दिया। अब हमें क्या करना है, लॉन्गर डायरेक्शन में लगानी है। तो लॉन्गर डायरेक्शन में क्या लगानी है, लॉन्गर डायरेक्शन क्या लगानी है, लॉन्गर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म लगाना है। ऐसा लगाना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यूनिफॉर्म पता है मुझे, क्या पता है कि लॉन्गर डायरेक्शन में 16 का डालना है, लेकिन हमारा दिस ऑल आर, दिस वन, यू कैन से दिस वन, यू कैन से दिस वन। ये जो लॉन्गर डायरेक्शन में है, दिस इज माई 16.5 एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर सेंटर। आपकी ड्राइंग में कैसे दिखाई देगी, आप देखो। सबसे पहले आपका रिइंफोर्समेंट क्या होगा, दिस विल बी रिइंफोर्समेंट। अगर क्रॉस सेक्शन कट करते हो, if you cut here, if you cut here the cross section, if you cut here the cross section xx, this is xx, सेक्शन xx, तो क्या मिलेगा मुझे, पहले मुझे शॉर्टर डायरेक्शन दिखाई देगी, ठीक है। तो शॉर्टर डायरेक्शन दिखाई देगी, तो उसमें क्या है हमारे पास, ऐसा करके दिया रहेगा, दिस इज द रिइंफोर्समेंट। ये है आपका 16.5 एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर सेंटर इन सेंट्रल बैंड। सेंट्रल बैंड में आपका ये है, और यही चीज जो है आपका क्या है, सेम आपका पास क्या है, यू कैन जस्ट राइट हियर 16.5 एट द रेट 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर इन एंड बैंड्स। एंड बैंड्स, एंड बैंड्स में आपको ये दिखाई देगी, ये आपका एंगल रहेगा ऐसा करके। ये आपकी शॉर्टर डायरेक्शन की रिइंफोर्समेंट है जो नीचे दिखाया है। नाउ कम टू द लॉन्गर डायरेक्शन, वो कैसा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, दिस 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 दिस, ये इस तरह का दिखाई देगा। तो जब ये इस तरह का दिखाई देगा तो मुझे क्या करना होगा, ये जो बार्स हैं हमारे, यू कैन से दीज बार्स, ये रेड जो मैं मार्क किया हूँ, दीज बार्स, ये है हमारे 16.5 एट द रेट 160 मिलीमीटर सेंटर सेंटर
इन लॉन्गर डायरेक्शन, इन लॉन्गर डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स जब आप साइड में जाओगे कोई काम करवाओगे, आपको तो ड्राइंग सप्लाई कर दी जाएगी, तो ड्राइंग स्टडी कैसे करोगे? तो ड्राइंग में जब शूटिंग बनानी होगी, इस तरह का क्रॉस सेक्शन कट करके आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, इस तरह की इन्फॉर्समेंट डिटेलिंग दी रहेगी। आपको समझना है कि कौन सा जो इन्फॉर्समेंट है वो लॉन्गर डायरेक्शन में है, कौन सा शॉर्टर डायरेक्शन में है। इस जगह से आप देख सकते हो कि किस जगह से क्रॉस सेक्शन कट किया हुआ है। ये रेड वाली जो है ये लॉन्गर वाली है या शॉर्टर वाली है, तो रेड वाली जो है लॉन्गर वाली है, जो कि उसकी स्पेसिंग 160 मिलीमीटर सेंटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो रेड वाली है यूनिफॉर्मली सबका स्पेसिंग सेम है, लेकिन जो नीचे है हमारा, जो इसमें मैं ये एंकरेज दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक वाली, इसकी स्पेसिंग एक 160 है आपके सेंट्रल बैंड में और 300 है आपकी एंड बैंड्स में, जो कि मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। सो दिस इज ऑल इन डिटेल अबाउट द डिजाइन ऑफ द फुटिंग। डिजाइन ऑफ द फुटिंग करने के लिए आपको 6 स्टेप्स करनी है और सारे इन्फोर्समेंट के डिटेल्स दिखानी होती है। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली, यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम, बट स्टे फोकस्ड टू योर गोल, बिकॉज अगर आप गोल पे फोकस्ड रहोगे, आई थिंक आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई होप आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।